Good morning, students. This is Amit Daya. I welcome you all in Master Amit Daya classes. Today we are going to do an important questions that help you out and build up your confidence. So don't waste your time. So I start the video. So let us move ahead. So the questions are: if A, B and C are any three sets, prove that A minus B intersection of C is equal to A minus B union A minus C. Very good question. Let A and B be two sets. Using properties of set, prove that A intersection B complement is equal to null or phi. It implies A is a subset of B. A is a subset of B, or A complement union B is equal to universal set U. It implies A is a subset of B. Prove it. So one by one we are going to prove these questions. So let us do the first question. If A, B, C are three sets, prove that A minus B intersection C is equal to A minus B union A minus C. So A minus B मीन्स क्या होता है? A माइनस बी मीन्स ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है. A माइनस बी इज द एलिमेंट ऑफ A which are not in the B. B intersection C means those element which are common to set B as well as set C. So these are equal. Equals means we are going to prove that this is the subset of this and this is the subset of this. So we are taking left hand side that let X belongs to A minus B intersection of C. X is an element that belongs to A minus B intersection of C. So इसका मतलब क्या है कि A belongs to A but does not belongs to B intersection of C. यही तो कहा था हमने. A माइनस बी का मतलब क्या है कि A के वो सारे एलिमेंट जो B में नहीं हैं. अगर कोई X एलिमेंट इससे बिलोंग करेगा तो A से बिलोंग करता है और माइनस वाले पार्ट से वो बिलोंग नहीं करेगा. So X belongs to A and X does not belongs to B intersection of C. So X does not belongs to intersection of B and C. It means क्या है कि X ना तो B में बिलोंग करता है और ना ही C में बिलोंग करता है. So X does not belongs to B and X does not belongs to C. It means X belongs to A and X does not belongs to B, and X belongs to A and X does not belongs to C. You can write here. So X belongs to A and X does not belongs to B. That can be written as X belongs to A minus B, or X belongs to A and X does not belongs to C. That can be written as X belongs to A minus C. Union is there, or so we can say that X belongs to A minus B union A minus C. Got it? Or can be union. So either इससे बिलोंग करेगा और या इससे बिलोंग करेगा. Yes or no? Or we can say that and is any element X belongs to A union B. It might be belongs to A and it might be belongs to, it can be or may, it can be belongs to B set. A से बिलोंग कर सकता है और B से बिलोंग कर सकता है, तो भी उसके यूनियन से बिलोंग करेगा. So X belongs to A minus B union of X minus A minus C. So we can say that हम यहाँ से चले थे और यहाँ से प्रूव कर दिया. We can say that this part is the subset of this part. Now equal प्रूव करने के लिए we are taking the element of this and we will prove this. So next, let Y be an element of A minus B union A minus C. So Y belongs to A minus B union A minus C. सो यूनियन से मतलब क्या कह सकते हैं हम
कि ए बिलोंग एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स ए माइनस बी और वाई बिलोंग्स टू ए माइनस सी. वाई बिलोंग्स टू ए बट वाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और वाई बिलोंग्स टू ए वाई डज नॉट बिलोंग्स टू सी. ए से बिलोंग करेगा, सी से नहीं करेगा. ए से बिलोंग करेगा, बी से नहीं करेगा. सो y बिलोंग्स टू ए, एंड इन दोनों में से हम कह सकते हैं y डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू सी. ना तो y b से बिलोंग करता और ना ही c से बिलोंग करता है. सो y बिलोंग्स टू ए एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू बी. इंटरसेक्शन जब इन दोनों से नहीं करेगा तो इनके इंटरसेक्शन से भी नहीं बिलोंग करेगा. सो वी कैन से दैट y डज नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ऑफ c. सो y इनसे बिलोंग नहीं करता और y ए से बिलोंग करता है, तो y a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ c से बिलोंग नहीं करेगा, तो y डज नॉट y बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ c. a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ c. सो वी कैन से दैट y कहाँ से चले थे, इससे चले थे और यहाँ पहुँच गए हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द सेट ऑफ सबसेट ऑफ दिस. अगर ये सबसेट ऑफ दिस है तो हम कह सकते हैं कि दिस आर टू इक्वल. सो a माइनस बी यूनियन a माइनस c इज इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट b इंटरसेक्शन ऑफ c. Got it or not? Yes. So another way, another question is there कि a intersection b minus c is equal to a intersection b minus a intersection c. कब? जब when a b c are three sets, show that कि a intersection b minus c is equal to a intersection b minus a intersection c. So same, both we have to prove that they are equal. Then these sets are equal. Then we have to prove that कि left side part is the subset of this and right side part is the subset of left side. So let x be an element that belongs to a intersection b minus c. a intersection b minus c का मतलब x belongs to a and x belongs to b minus c. So we can write x belongs to a and x belongs to b minus c. x belongs to a and x b minus c means क्या है कि x belongs to b but does not belongs to c. So x belongs to b and x does not belongs to c. So we can write here कि x belongs to a and x belongs to b and x belongs to a and x does not belongs to c. So we can say that x belongs to a intersection of b. अगर वो दोनों से बिलोंग करता तो उनके इंटरसेक्शन से ही बिलोंग करेगा. एंड x does not belongs to a intersection of c. वाई नॉट इंटरसेक्शन ऑफ सी? भाई x बिलोंग्स टू ए में करता है, c में करता नहीं है, तो उनके इंटरसेक्शन में कहाँ होगा? कॉमन पॉइंट थोड़ा ना बना. कॉमन पॉइंट नहीं बना तो उसके इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करेगा. सो अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ऑफ b डज नॉट बिलोंग्स टू x ए इंटरसेक्शन ऑफ c, तो वी कैन राइट हियर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ऑफ b माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ c. सो वी कैन से दैट हम ये लेके चले थे और यहाँ पहुँच गए, तो दिस साइड इज़ द सबसेट ऑफ दिस. और सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस इज़ द सेट ऑफ दिस. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, बी अ डेल्टा सी or symmetric difference, we can say that here the symmetric difference of two set is b minus c union c minus b. एक बार क्या करेंगे? b माइनस सी करेंगे, एक बार c माइनस b करेंगे. मतलब क्या हुआ? b के वो सारे एलिमेंट जो c में नहीं करते एंड c के वो एलिमेंट जो b में एग्जिस्ट नहीं करते, उन दोनों का यूनियन डेल्टा कहलाता है. So let another question, good question is this. Let A and B be two sets. Using properties of sets, prove that A intersection B complement is equal to phi
इट इम्प्लाई दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। या तो ये लेके चलें और ये प्रूव कर दें, या ये लेके चलें और ये प्रूव कर दें। ये कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन अगर फाई है तो ए सबसेट ऑफ बी होगा। मैं कोशिश करूँगा इसको समझाने के लिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन मेथडों से देखते हैं। इन क्वेश्चनों को अगर हम डायरेक्टली वेन डायग्राम का यूज़ करें तो 1 मिनट के क्वेश्चन नहीं है, बट इनको एल्जेब्रिकली प्रूव करना आ जाता है तब हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू यूज़। ये कहता है जी सेट ए कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन ऑफ यू। यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन ए ही आएगा, पढ़ा हमने। नाउ अप्लाई द ए इंटरसेक्शन। सो ए इज इक्वल टू, वी कैन राइट ए इंटरसेक्शन यू कैन बी रिटन एज बी यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। यू कैन बी रिटन एज बी यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। एक बी सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट जो बी के एलिमेंट, जो बी ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, और बी के कॉम्प्लीमेंट को मिलाएंगे तो क्या बनाएगा यू। सो यू कैन बी रिटन एज बी यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ and union A intersection of B complement, and then A intersection of B complement is given phi, so this is phi. So A intersection B union phi, that gives us the A intersection B. So we can say that A is equal to A intersection of B. सोच के देखें कि A is equal to A intersection of B, ए एंड बी का इंटरसेक्शन ए के इक्वल है। इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि ए और बी के कॉमन पॉइंट हैं, और कॉमन का मतलब कौन है, ए वाले सारे एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट या सेट ए कहाँ लाई कर रहा है, बी के अंदर होगा, तभी तो उसके सारे एलिमेंट बी के अंदर इंटरसेक्शन में आएंगे। तो इट मीन्स वी कैन से दैट अगर ए बी के अंदर है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। फिर से देख लें हमने क्या किया। मान के चले कि ए था, ए सेट को मैं लिख सकता हूँ ए कैन बी, कुछ टर्म्स याद रखनी हो सकती हैं हमें जो मेथड्स हैं स्टार्ट करने के। इसके और कोई भी मेथड भी हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। सो ए इंटरसेक्शन ऑफ यू and u can be written as here b union b dash, b dash मतलब b complement, and by distributive law we can use a intersection of b union a intersection of b dash, and a intersection of b union a intersection of b, that is given to phi. So a intersection of b union phi, then this gives us the only intersection of b, और ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू ए। इट मीन्स क्या हुआ, अगर हम नल से डायग्राम की बात करें, मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो ये अगर मैं आपके सामने एक यू सेट बनाता हूँ, दिस इज़ बी, और ये उसके अंदर हमने छोटा सा ए, बी एंड दिस इज़ ए, इन दोनों का इंटरसेक्शन ए ही तो होगा। अगर ये इन दोनों का इंटरसेक्शन ए है तो इट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सो लेट अस मूव अहेड। हम इसको एक दूसरे तरीके से, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ वे से भी एज्यूम करने की कोशिश करते हैं। क्या किया इन्होंने कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ गिवन फाई, दैट इज़ गिवन फाई, फाई गिवन है, देन इट इम्प्लाई दैट कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। हम ये मान के चलते हैं कि ये फाई नहीं है, नल सेट नहीं है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, कॉन्ट्राडिक्ट एज्यूम कर लिया हमने, एंड देन ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी।
Let us assume that A intersection of B dash not equal to phi. So there is an element X that belongs to A intersection of B complement, and X belongs to B. A intersection of B complements means X belongs to A as well as X belongs to B complement. X belongs to A एंड X बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट, कोई भी नंबर कोई भी एलिमेंट अगर उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो उसके ओरिजिनल सेट में बिलोंग नहीं करेगा, या कोई नंबर जो उसके ओरिजिनल सेट में बिलोंग करता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में सेट में नहीं बिलोंग करेगा. सो X डज नॉट बिलोंग्स टू द B. अगर B कॉम्प्लीमेंट में है तो B X B में सेट नहीं करेगा. बट ए गिवन क्या हुआ कि ए सबसेट ऑफ बी. सबसेट ऑफ बी का मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए है तो एक्स बिलोंग्स टू बी भी तो होगा. अगर ये इसका सबसेट है तो एक्स बिलोंग्स टू ए है तो एक्स बिलोंग्स टू बी होगा. इन दोनों कंडीशन को देखें, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्या पॉसिबिलिटी है? एक कहता है जी एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक कहता है जी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी. इट मीन्स क्या कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने माना था आर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर सुपर इम्पोजिशन इज रॉन्ग. सो रॉन्ग है तो हमने क्या माना था कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू फाई. नॉट इक्वल टू फाई है तो क्या होना चाहिए? दैट इक्वल्स टू द फाई. सो वी कैन से दैट अगर ये फाई है तो वी कैन प्रूव दैट ए सबसेट ऑफ बी. नेक्स्ट, अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझाना चाहूँ तो वेन डायग्राम से देखें इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं. वेन डायग्राम को समझने के लिए मान लेता हूँ कि एक यूनिवर्सल सेट है U और उसके अंदर दो सेट हैं A एंड B. ये तो ऐसा ही कहा है ना कि A एंड B आर टू सेट्स, हमें नहीं पता क्या था. अगर मैं इनको और समझाऊँ तो B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि B को छोड़ के जितने भी उस यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट हैं दैट इज़ द B कॉम्प्लीमेंट. नाउ वेयर शुड बी द A. ए कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए का मतलब अगर A इंटरसेक्शन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, अगर ये तो B कॉम्प्लीमेंट हो गया, B डैश हो गया पूरा पार्ट, B वाले सेट को छोड़ के जो बाकी पार्ट बचा है वो B कॉम्प्लीमेंट है, वो B कॉम्प्लीमेंट है. तो A अगर इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा तो उसका इंटरसेक्शन फाई तो नहीं आएगा भाई, यही आएगा. फिर तो फाई कब आ सकता है? जब A इस खाली कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, B डैश में नहीं होगा. इफ़ A लाइज इन द B डैश देन A इंटरसेक्शन ऑफ B डैश विल नॉट बी इक्वल टू द फाई. देखें अगर यहाँ है तो इन दोनों की कंडीशन से मैं कह सकता हूँ कि फाई नहीं होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन A ही होगा. ये पॉसिबिलिटी कब आई, कब हो सकती है? ओनली व्हेन A इनसाइड द B. इनसाइड द B मतलब B कंटेन द A. B कंटेन द A. अगर B कंटेन A करेगा तो A इज ए सबसेट ऑफ B. सो A इज ए सबसेट ऑफ B. सो वी आर गोइंग टू द अनदर क्वेश्चन. Another question is A and B are two sets and it is given then A complement union B is equal to U. A complement union B is equal to U. It implies that कि A is subset of B. A is a subset of B. Let's, ये given था A complement union B is equal to U. सो अगर मैं A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B को क्या लिख सकता हूँ? B कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा सेम सेट आता है, ओरिजिनल सेट. B का कॉम्प्लीमेंट एंड अदर फिर से B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट गिव्स द सेम ओरिजिनल सेट B. तो B कैन बी रिटन एज द B डैश एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट. Yes or no? So B can be written as A complement union B complement, its complement is equal to U. Now taking the complement both side, so A complement union B complement complements
एंड होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू कॉम्प्लीमेंट। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब फाई, नल सेट, सो दिस इज नल। और बाय डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है भाई, ए यूनियन बी इट्स कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। सेट थ्योरी के अनुसार डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। सो दैट कैन बी चेंज, दिस थ्योरम कैन बी चेंज, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन कैन बी चेंज इन इंटरसेक्शन, सो इंटरसेक्शन, और बी का कॉम्प्लीमेंट बी मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट गिव्स फाई। और अभी अभी इससे पीछे हमने यही किया था कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर फाई है तो ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, सो ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, देन वी कैन से दैट ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, hence proved. Now one more method is there, so let a union a complement union b is equal to universal truth, universal set is given, then we apply that intersection both sides, so a intersection a complement union b is equal to a union a intersection u, then distributive law a intersection of a dash यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, सो ए इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश मतलब ए और उसके कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं, सो फाई यूनियन दिस, एंड फाई का किसी ए इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे तो सेम सेट आता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ए सेट ऑफ बी। सो I request you all, please like, share and subscribe my channel. Thank you all. Have a good day.